Dear students, this is Imran Kazmi and we are going to study lecture number 33 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we have introduced the following properties of object-oriented programming: data hiding, abstraction, and encapsulation. In this lecture, we will discuss the remaining properties of object-oriented programming, that are inheritance and polymorphism. What is inheritance? Inheritance is the mechanism to provide the power of reusability and extendability in the programming. Inheritance is the process by which one object can acquire the properties of another object. Through inheritance, we reuse existing classes to build new classes. So, the major benefit of reusability and extendability can be achieved through the concept inheritance. So, inheritance is a major concept or the major property of object-oriented programming that gives the benefit of reusability of components, and components can be reused through existing classes. The existing classes that are reused to create a new class, those classes are called superclasses, or you can say the existing class that is reused to create a new class would be called as superclass, base class, or parent class. While the new class that inherit the properties and functions of an existing class is known as subclass, derived class, or child class. So the existing class that is reused is called superclass, and the new class that share the properties or inherit the properties and functions of existing class would be called as subclass, derived class, or child class. So we would have parent-child relationship, base class and derived class, superclass and subclass. So whatever the term is used, either you can say superclass, base class, or parent class for the existing classes, and for the new classes that inherit the properties, we will call them as subclasses or derived classes or child classes. तो ऐसी classes जो exist कर रही होती हैं उन्हें हम सुपर या बेस क्लास कहते हैं या फिर पेरेंट क्लास कहते हैं, और जो नई क्लासेस बनाते हैं जो एग्जिस्टिंग क्लासेस से इनहेरिट करती हैं प्रॉपर्टीज़ को या फंक्शंस को, वो न्यू क्लासेस जो है उनको हम चाइल्ड क्लासेस, सब क्लासेस या ड्राइव्ड क्लासेस बोलते हैं. सब क्लास या ड्राइव्ड क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट क्लास और बेस क्लास. सब क्लास या चाइल्ड क्लास में ये पावर होती है, या सब क्लास और चाइल्ड क्लास के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो शेयर कर सके या इनहेरिट कर सके और उसके फंक्शंस को यूज़ कर सके. सो इनहेरिटेंस के ज़रिए हम रीयूजेबिलिटी जो है वो अचीव करेंगे. फॉर एग्जांपल, we have a class vehicle, and we have subclasses bus, truck, and motorcycle.
तो यहाँ पे हमारी जो पेरेंट क्लास है दैट इज व्हीकल, दैट इज आल्सो कॉल्ड बेस क्लास, while bus, truck and motorcycles are our child classes or derived classes. तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है बस, ट्रक और मोटरसाइकिल की, कॉमन प्रॉपर्टीज और फंक्शंस आर केप्ट इन व्हीकल, वाइल जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट क्लासेस में रख दी जाएंगी। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनका उनको कोड जो है वो रीडेवलप नहीं करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टीज हम अपनी पेरेंट क्लास से शेयर कर लेंगे, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट होंगी उनको हम डेवलप कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे रीयूजेबिलिटी भी अचीव की और एक्सटेंडेबिलिटी भी अचीव की। रीयूजेबिलिटी इस तरह से कि जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस कॉमन थे उनको हमने डेवलप नहीं किया, बल्कि उन्हीं प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस को हमने चाइल्ड क्लासेस में इस्तेमाल कर लिया। और एक्सटेंडेबिलिटी इस तरह से कि ओनली जो डिफरेंट फीचर्स थे उनको हमने जो है वो हर चाइल्ड क्लास में ऐड कर लिया। इस तरह से जो चाइल्ड क्लास होगी उसमें एग्जिस्टिंग क्लास के सारे फीचर्स जो है आ जाएंगे, प्लस उसके अपने एडिशनल फीचर्स आ जाएंगे। जैसे इस क्लास बस में व्हीकल क्लास के भी फीचर्स मौजूद होंगे और एडिशन टू इट्स ओन फीचर्स भी जो है वो इसमें मौजूद होंगे। सिमिलरली ट्रक के पास व्हीकल क्लास के भी फीचर्स होंगे, प्लस इसके अपने एडिशनल फीचर्स भी मौजूद होंगे। सिमिलरली मोटरसाइकिल क्लास के पास व्हीकल क्लास के भी फीचर्स होंगे और इन एडिशन टू इट्स के इसके अपने फीचर्स भी इसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से इनकी एक्सटेंडेबिलिटी भी होगी और रीयूजेबिलिटी भी होगी, क्योंकि जो कॉमन फीचर्स थे वो सारे व्हीकल क्लास से शेयर हो गए और उसके लिए कोडिंग जो है वो नहीं करनी पड़ी। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल सेट की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस क्लास या सुपर क्लास जो है वो बाइसिकल्स की है। इस पे मैंने कुछ फीचर्स रखे हैं, ये 7 प्रॉपर्टीज है। जबकि इस बाइसिकल क्लास को आगे फर्दर जो है इससे ड्राइव हुई हैं 3 क्लासेस, माउंटेन बाइक, रेसिंग बाइक और टैंडम बाइक्स। ये चाइल्ड क्लासेस कहलाएंगी, माउंटेन बाइक एंड रेसिंग बाइक, एंड बाइसिकल जो है ये पेरेंट क्लास कहलाएगी। तो जो आपकी चाइल्ड क्लासेस या ड्राइव्ड क्लासेस हैं इनमें वो तमाम फीचर मौजूद हैं जो आपकी पेरेंट क्लास के हैं। ये 7 जो है ये डायग्राम्स मैंने यहाँ पे शामिल की हैं, ये तमाम फीचर्स। तो जो क्लासेस इनहेरिट कर रही होती हैं उनमें वो तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं जो उनके पेरेंट क्लास के हैं, प्लस एडिशनल फीचर। जैसे यहाँ पे एक फेस जो है वो मैंने ऐड किया, यहाँ पे हार्ट जो है ऐड किया गया, इसी तरह से मून ऐड किया गया। तो जो एग्जिस्टिंग फीचर्स थे पेरेंट क्लास के फीचर्स जो है वो सेम इनहेरिट हो गए, उनको रीडेवलप नहीं करना पड़ा। जो ऑलरेडी डेवलप्ड फीचर्स थे वो इनहेरिट हो गए, प्लस एडिशनल फीचर आप ऐड करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें कि रीयूजेबिलिटी भी हुई है और एक्सटेंडेबिलिटी भी हुई है। जैसे ये 7 फीचर्स जो है ये रीयूज हो गए हैं और ये जो न्यू फीचर्स हर क्लास में ऐड हुआ है जो कि डिफरेंट था एक दूसरे से, वो एक्सटेंडेबिलिटी में आ गया आपका। तो कॉमन फीचर्स जो है ये आपकी पेरेंट क्लास के हैं और जो डिफरेंट फीचर ऐड हुआ है वो चाइल्ड क्लास का अपना है। तो इस तरह से इनहेरिटेंस काम करती है कि आप पेरेंट क्लास के जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं वो आप रीयूज़ कर लेते हैं और चाइल्ड क्लासेस में आप न्यू फीचर्स भी ऐड कर लेते हैं। तो आपकी चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की भी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लस उसकी अपनी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो मौजूद होती हैं।
जैसे यहाँ पे माउंटेन बाइक में 7 फीचर्स जो है वो इनहेरिट किए हुए हैं। इसका मतलब है उन्हें हमने रीडेवेलप नहीं किया बल्कि उन्हें रीयूज कर लिया और एक एडिशनल फीचर हमने ऐड कर लिया। तो ये देखें, ये रीयूजेबिलिटी की सारी एफर्ट जो है इससे हमारी बच गई है, हमें उन्हें जो है वो डेवलप नए सिरे से नहीं करना पड़ा। तो विद लेस एफर्ट हमने उन्हीं फीचर्स को जो है वो थ्रू इनहेरिटेंस जो है वो यूज़ कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 7 फीचर्स वही हैं जो पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुए हैं, प्लस एक एडिशनल फीचर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और सिमिलरली यहाँ पे भी 7 फीचर्स जो है ये कॉमन है जो पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुए हैं, प्लस एक एडिशनल फीचर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 7 फीचर्स के लिए आपको नई डेवलपमेंट नहीं करनी पड़ी, बल्कि आपने पुरानी डेवलपमेंट को रीयूज़ कर लिया। इससे आपका एफर्ट भी बची, कम एफर्ट हुई, कम टाइम कम कॉस्ट में आपने ज़्यादा काम जो है वो कर लिया। तो इनहेरिटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये आपको रीयूजेबिलिटी जो है, रीयूजेबिलिटी की पावर जो है वो ये प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस: it allows the developers to reuse the existing code in many situations और सब क्लासेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रीयूज़ किया पेरेंट क्लास के फीचर्स को, चाइल्ड क्लासेस में हमने रीयूज़ कर दिया। ये 7 फीचर्स चाइल्ड क्लासेस में रीयूज़ हुए। सेव टाइम एंड एफर्ट: ऑब्वियसली जब कोड आपका दोबारा आपको डेवलप नहीं करना पड़ा और आपने सेम कोड जो है वो अगेन एंड अगेन यूज़ कर लिया है, तो इससे आपकी एफर्ट और टाइम जो है ये बचे हैं। एफर्ट और टाइम आपका कम जो है वो स्पेंड हुआ है, तो बिकॉज यू हैव रीयूज द सेम कोड एंड अगेन। तो आपको कोड जो है सेम कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा, उसी कोड को आपने रीयूज़ कर लिया। सो कम एफर्ट और कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी: a super class is already compiled and tested properly, so उससे आपका स्ट्रक्चर और रिलायबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपकी पेरेंट क्लास है, तो इसके ये 7 फीचर्स जो है ये ऑलरेडी आपने टेस्ट किए हुए हैं, इसको आपको बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब चाइल्ड क्लासेस में आप ये 7 फीचर्स यूज़ करेंगे, तो चूँकि ये ऑलरेडी टेस्टेड हैं, इसलिए इनको आपको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक स्माइलिंग फेस जो आपने एडिशनल फीचर ऐड किया है, सिर्फ उसी को टेस्ट करेंगे तो आपके माउंटेन बाइक के सारे फीचर्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 90% काम जो है वो पहले से हुआ है, 10% आपने ऐड किया है, तो आपका जो है वो एक पूरी सब क्लास तैयार होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 फीचर्स जो कि पेरेंट क्लास में ऑलरेडी टेस्ट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे उनकी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ओनली जो हार्ड फीचर आपने एडिशनल ऐड किया है ये आप टेस्ट कर लेंगे, तो आपकी ये पूरी सब क्लास जो है ये टेस्ट हो जाएगी। तो चूँकि रीयूज़ करते हुए कंपोनेंट्स जो है वो ऑलरेडी टेस्ट और कंपाइल हो चुके होते हैं, इसलिए आपको जो है वो उन कंपोनेंट्स पे एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आपके सुपर क्लास वाले जितने भी फीचर्स हैं वो सारे टेस्टेड होते हैं। जो आप एडिशनल फीचर आप साथ ऐड करेंगे, सिर्फ उन्हीं को टेस्ट करेंगे, तो इस तरह से आपकी रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टेस्टेड। तो जो चीज़ ऑलरेडी टेस्टेड है वो आपके लिए रिलायबल है, उस पर आपको दोबारा टेस्ट कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। We have some categories of inheritance: single inheritance, multi-level inheritance and multiple inheritance। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सिंगल इनहेरिटेंस मीन one base class or parent class and one child class or derived class, flower and rose, only one parent and one child. This is single inheritance. And what is multi-level inheritance? World, India, राजस्थान, जयपुर। तो ये देखें कि ये एक क्लास वर्ड है
आगे उसकी सब क्लास इंडिया, आगे उसकी सब क्लास ये है, और फिर आगे नेक्स्ट उसकी सब क्लास जो है वो आपके पास ये है। तो ये एक सुपर क्लास की ये सब क्लास, फिर इस सब क्लास को आगे फर्दर इसके जो है वो सब क्लास बनाएगी, तो इस सब क्लास की ये सुपर क्लास बन गई, और फिर इस सब क्लास की ये सुपर क्लास बन गई। तो जब ये इनहेरिटेंस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो अगर ए आपकी सुपर क्लास है तो बी उसकी सब क्लास, और सी जो है वो सब क्लास बन जाएगी बी की, और डी जो है वो सब क्लास बन जाएगी सी की। इस तरह से अगर एक क्लास से दूसरी, और दूसरी से तीसरी, और तीसरी से चौथी क्लास इनहेरिट हो रही हो, तो उसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, जिसमें आपकी इनहेरिटेंस आगे जो है वो बढ़ती जा रही है। और जिसमें आपकी इनहेरिटेंस जस्ट एक सिंगल जो है वो आपकी सब क्लास हो, तो वो आपकी सिंगल लेवल कहलाएगी या सिंगल इनहेरिटेंस, और ये आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगी, जिसमें सब क्लास को आगे फर्दर जो है वो ड्राइव कर दिया गया हो, फर्दर उसकी सब क्लासेस बना दी हों, और फिर आगे उसकी फर्दर सब क्लासेस बना दी गई हों। तो सब क्लास टू सब क्लास फिर वो क्या बनती जाएंगी, वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आ जाएगी। जैसे इस क्लास की ये पेरेंट क्लास बन जाएगी, इस क्लास की ये पेरेंट क्लास बन जाएगी, और इस क्लास की ये पेरेंट क्लास बन जाएगी। तो ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, और ये आपकी सिंगल इनहेरिटेंस है। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी चाइल्ड क्लास जो है वो एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट कर रही हो या बेस क्लासेस से। तो यहाँ पे देखें कि आपकी चाइल्ड क्लास एक है, जबकि ये इनहेरिट जो है वो दो क्लासेस से कर रही है, तो इसकी दो बेस क्लासेस हैं। जबकि यहाँ पे बेस क्लास एक ही चल रही है, ये इसकी बेस क्लास, ये आगे बेस क्लास, ये इसकी बेस क्लास। तो यहाँ पे बेस क्लास का सिंगल कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे आप चेक करें तो आपकी ये जो बर्ड आपकी ड्राइव्ड क्लास है, इसके दो पेरेंट्स हैं, पैरट और स्पैरो। तो यहाँ पे पैरट और स्पैरो जो है ये बेस क्लासेस हैं, और इसकी ये एक ड्राइव्ड क्लास है। तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जिसमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और इधर से भी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप जो है वो अपने वालिद से भी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहे हो, और आप अपने चचा से भी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर रहे हो, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें आप दो पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो जिसमें सिंगल पेरेंट से प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही होती हैं वो सिंगल इनहेरिटेंस है। और इसकी मिसाल बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे दादा की प्रॉपर्टीज़ फादर ने इनहेरिट की, फादर की प्रॉपर्टीज़ जो है वो चाइल्ड ने इनहेरिट की, तो इस तरह से ये क्या बन रही है, ये मल्टी लेवल बन रही है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में पेरेंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा होंगे, और चाइल्ड जो है वो कम होंगे। तो अगर एक से ज़्यादा पेरेंट्स से प्रॉपर्टीज़ जो है वो शेयर की जा रही हैं या इनहेरिट की जा रही हैं, तो वो आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसको हम डिटेल में जो है वो इसकी कोडिंग करेंगे तो आपको फर्दर जो है वो समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि अगर एक से ज़्यादा पेरेंट या बेस क्लासेस से प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनहेरिट की जा रही हों, तो उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। The second important concept of object-oriented programming, polymorphism. The word polymorphism is divided into two parts, poly and morphism. Poly mean many and morphism mean forms or behavior. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पॉलीमॉर्फिक होता है, मीन मैनी फॉर्म्स या मैनी बिहेवियर्स। तो एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बिहेवियर जो है वो कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को जब हम डिफ़ाइन करेंगे तो इसमें आप ये देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट क्लासेस में जाता है तो उसका बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस जो है वो चेंज होता रहता है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट क्लासेस में जाए और उसका बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू क्लास चेंज हो जाए, या उसका फंक्शन या फॉर्म जो है वो चेंज हो जाए, तो ये हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसने पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर रखा है, इसका बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस जो है वो चेंज होता गया। जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है
वो पेरेंट क्लास में जाता है तो उसका बिहेवियर और होता है, और आगे सुपर पेरेंट में जाता है तो उसका बिहेवियर और हो जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस में मूव करता है तो उसका बिहेवियर जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लासेस जो है वो चेंज होता जाता है। तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस चेंज हो जाना पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, जब वो अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास में होता है तो उसका बिहेवियर और होता है, जब वो कज़न्स की क्लास में जाता है तो उसी का बिहेवियर और होता है, जब वो फ्रेंड्स की क्लास में जाता है तो उसका बिहेवियर और होता है, और सिमिलरली जब वो अपने बहन भाइयों की क्लास में जाता है तो वहाँ पे उसका बिहेवियर और हो जाता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्लासेस में मूव करता है तो विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम पॉलीमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टी हमारे पास मौजूद है। पॉलीमॉर्फिज्म का भी जो है वो हम सपोर्ट हम लेंगे, और इसके ज़रिए भी हम जितना जो बेनिफिट ले सकेंगे प्रोग्रामिंग में लेंगे। तो अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इससे कोड लेंथ जो है वो कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बिहेवियर डिफरेंट क्लासेस में मूव होता जाता है और डिफरेंट क्लासेस में आपके ऑब्जेक्ट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो वी कैन डेवलप अ मोर फ्लेक्सिबल कंपोनेंट एज कंपेयर टू स्टैटिक वन। हम ऐसा नहीं है कि जी एक ऑब्जेक्ट जिस क्लास के लिए बना है उसी क्लास में जस्ट वो यूज़ होगा। हम उसे जो है वो थ्रू इनहेरिटेंस या हमारे पास जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट क्लासेस में जाता है तो उसका बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू क्लास जो है वो चेंज हो जाता है। इस चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।